Friends, we started with the concept of units. Very first, we saw what is physics. Physics is a branch of it's a branch of science studying all the phenomena occurring around us. Studying the phenomena around surrounding us, that's called physics. To study the phenomena, in order to describe the phenomena, we use certain words, ideas, or terms, and these words, ideas, or terms are called physical quantities. That is what we had seen. For physical quantities, we classified into two groups, that is fundamental quantities and derived quantities. In fundamental quantities, we saw that this was mass, length, and time, and other all quantities were derived quantities because they were derived using fundamental quantities. Then we took the concept of unit, that every physical quantity has a magnitude and a proper unit to justify the magnitude. फिर यूनिट्स के बारे में आइडिया लिया एंड यूनिट्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. फिर बाद में हमने बात की थी कि फंडामेंटल यूनिट्स अगर पता लग जाए तो फिर वी कैन इजीली डिराइव द यूनिट्स, अदर यूनिट्स. So to fix the fundamental units, an organization IBWM works, which is located in Paris. Now this organization fixes the fundamental units of quantities, and such a group of fundamental units is called a unit system. So unit system is nothing but group of fundamental units. It is group of fundamental units. चलो हम एक काम करते हैं, आईबीडब्ल्यूएम ने जो यूनिट्स फिक्स किए उनके बारे में बातें करते हैं. यानी विल टॉक अबाउट यूनिट सिस्टम्स टुडे. यहां पे लिस्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम. तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारे पास में. सबसे पहले आईबीडब्ल्यूएम टुक सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, डिनोटेड बाय छोटा सी छोटा m. Centimeter was chosen as unit of length. Then mass, the unit of mass was chosen as gram, छोटा g छोटा m सिंबल. लेंथ के लिए सेंटीमीटर चूज किया, मास के लिए ग्राम चूज किया, एंड टाइम के लिए सेकंड लिया. These are the three units selected for fundamental quantities. So these becomes fundamental units, and the group initial C, G, and S. This forms CGS unit system, the very first unit system which came into existence. CGS unit system decided by IBWM. Now CGS was the first unit system. CGS stands for C, centimeter as a fundamental unit of length, G, gram, fundamental unit of mass, and S, second fundamental unit of time. As the time passed, IBWM found that centimeter and gram are quite small units, so they increased its size. That is, made centimeter 100 times and defined meter. 100 times centimeter is a meter, denoted by छोटा m. Now be very careful, मीटर के दो वर्जन है हमारे पास में, एक METER एंड दूसरा METRE. ये दोनों मीटर वर्ड है ना. दोनों में फर्क कितना है? स्पेलिंग में थोड़ा ही फर्क है, ER एंड RE. तो विच वन इज द करेक्ट यूजेज हियर? लेंथ के लिए व्हाट वी यूज इज मीटर. तो फिर ये ER क्या है? व्हेन इट इज एन ER, it is a device or instrument measuring something. It's an instrument used for measuring. जैसे अपने घर पे लाइट का मीटर होता है, पानी का मीटर होता है, तो उसमें स्पेलिंग METER आता है. वहां पे भूल से भी RE मत लिखना, नहीं तो लाइट को भी फुटपट्टी से मेजर करना पड़ेगा. बराबर ना. सो ये दोनों में इतना फर्क है. इसे लेंथ के लिए जब भी यूज करें METRE is to be used. Okay. Now they increase the size of centimeter, made it 100 times, and they define it as meter. फिर ग्राम को 1000 टाइम्स किया, किलोग्राम, डिवाइडेड बाय केजी, छोटा के छोटा जी, किलोग्राम. तो मास के लिए ग्राम को 1000 टाइम्स करके किलोग्राम किया, लेंथ के लिए सेंटीमीटर को 100 टाइम्स करके मीटर किया. पर समय का क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग चाहे कितना भी प्रोग्रेस करे, उसके लेंथ एंड मास के मायने चाहे कितने भी बढ़े, समय कभी भी चेंज नहीं हुआ. द टाइम विल रिमेन सेकंड एज इट इज. क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहा है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट्स, एवरी मिनट हैविंग 60 सेकंड्स. द थिंग रिमेन्स द सेम इवन दो ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेसेस. 1601 में ब्रिटिशर्स आए, 1947 में हमने आज़ादी ली, 250-300 साल गुजर गए, फिर भी समय तो वही रहा. दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड्स. इट डिड नॉट चेंज. तो इवन दो वी इंक्रीज द मास एंड लेंथ, द टाइम is not able to increase. So this becomes MKS unit system. So this came into existence.
नाउ IBWM डिसाइडेड MKS एज अ स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं किया फिर इसको, अब यहाँ पे आके रुके, पूरे दुनिया में उन्होंने सर्कुलेट कर दिया कि नाउ MKS सिस्टम विल बी अवर फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। पर पता नहीं इस ग्लोब पे एक जमात, एक कम्युनिटी ऐसी है जो किसी की बातें नहीं मानती। यू ट्राई टू जज हु दे मे बी। ये ऐसी जमात है जिनको बताया गया कि MKS नाउ सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम इज अ फंडामेंटल यूनिट सिस्टम विल बी यूजिंग। दे सेड हु डिसाइडेड दिस यूनिट सिस्टम? IBWM said that we decided. What is IBWM? IBWM is a group of members of all the countries. What are these countries? जब लिस्ट दिया गया कंट्रीज का तो उसने बोला ये तो सारे मेरे गुलाम है, मैं तो राजा हूं, मैंने इन सब पे राज किया हुआ है। होप यू हैव गॉट द आइडिया हु द पीपल आर। दे आर द ब्रिटिशर्स और द रॉयल पीपल। सो दे वी नो दैट ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोब। तो उनके लिए तो ये किसने डिसाइड किया? IBWM ने, जिसमें सारे मेंबर्स कौन है? ऑल द कंट्रीज। We very well know that history says Britishers have ruled almost entire globe. इसे राजा तो कोई मानेगा नहीं कि दासों ने मिलकर नक्की किया और हम लोग मान ले, नहीं, उन्होंने तो अपना अलग सिस्टम रखा है। उन्होंने लेंथ के लिए यूज किया हुआ है फुट, FT। मास के लिए दे यूज पाउंड, LB इज अ नोटेशन। तो ये ब्रिटिशर्स ने लेंथ के लिए फुट यूज किया है, मास के लिए पाउंड। दे आर यूजिंग इट सिंस लॉन्ग and they stick to it, foot as a unit of length, pound as a unit of mass। पर समय, राजा हो या दास, समय तो वही का वही रहेगा। घड़ी छोटी सी हाथ में पहनो या बड़ा टावर बनाओ, दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट एंड हर मिनट में 60 सेकेंड्स, वो तो फिक्स होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कोई भी साइज की घड़ी पहनो, समय तो समय ही रहेगा, वही का वही। तो राजा हो या गरीब, हमेशा समय तो वही रहेगा। तो नाउ इट कम्स FPS यूनिट सिस्टम। FPS यूनिट सिस्टम इज solely used by Britishers. Even we, being the traditional slaves of British mentality, still we use foot. आप बोलोगे ऐसा कैसा? While purchasing office, we get the size of the office in square feet. What is that square feet? That is the length unit used by Britishers. अभी भी जिम में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ये महीने में 2 पाउंड लूज किया, या फिर लॉकडाउन में घर बैठे बैठे 4 पाउंड बढ़ा दिया। 4 पाउंड मतलब क्या? 2 किलो हुआ। 2 किलोग्राम नहीं बोलेंगे पर 4 पाउंड बोलेंगे, क्योंकि अभी भी स्टिल वी आर यूजिंग द पाउंड एज अ यूनिट इन सर्टन प्लेसेस। इसलिए हम लोग अभी भी FPS तो यूज करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये तो हो गया ब्रिटिशर्स का सिस्टम, FPS सिस्टम। बट IBWM ने तो फिक्स कर दिया कि MKS यूनिट सिस्टम इज द स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड। भले ब्रिटिशर्स माने के नहीं माने, बट वी विल बी नॉर्मली यूजिंग MKS सिस्टम। तो व्हाटएवर यूनिट सिस्टम वी विल बी यूजिंग फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर लेंथ, मास एंड टाइम विल बी मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम। ओके, तो MKS तो फाइनल हो गया। अब एक बंदा ऐसा था, नाम प्रोफेसर जॉर्जी। he was doing some experiments with electric current, and we know that electric current का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज एम्पियर। जॉर्जी ने देखा कि एम्पियर करंट का यूनिट है। ऑब्वियसली इट इज नॉट इन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में तो है नहीं वो, मतलब डिराइव्ड हुआ। एज इट इज नॉट इन फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो एम्पियर को डिराइव किया उसने मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड के टर्म्स में। ही ट्राइड अ लॉट बट ही नेवर गॉट इट। एम्पियर को डिराइव करने की कोशिश की मीटर, किलोग्राम, सेकंड में, ही कुड नॉट डू इट। तो वो तो बंदा पहुंच गया IBWM के पास, उनको प्रेस किया, एम्पियर इज नॉट इन द लिस्ट, बोले फाइन, देन इट्स अ डिराइव्ड यूनिट, बोले फाइन, तो ऑब्टेन इट इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मुझसे तो नहीं होता, आप करके दीजिए। IBWM also tried it a lot, but they could not get the ampere in terms of meter, kilogram and second. So they ultimately decided that इन 3 के साथ में एक चौथा क्वांटिटी भी ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर। सो नाउ इट इज मीटर for length, kilogram, kg for mass, second for time and ampere for electric current। तब हो गया MKSA। तो ये नया सिस्टम फिर एग्जिस्टेंस में आया, MKSA यूनिट सिस्टम। तो उसके बाद MKSA सिस्टम यूनिट एग्जिस्टेंस में आया। सो दीज आर यूनिट सिस्टम्स
यानी एमकेएस ही है पर साथ में एक्सटेंडेड, क्योंकि एम्पियर भी ऐड किया गया। ओके, सो द न्यू यूनिट सिस्टम कमिंग इन एग्जिस्टेंस इज एमकेएस यूनिट सिस्टम। बराबर। So we came to the MKS unit system as accepted by IBWM. Let's see the entire system again. What is unit system? It's a collection of fundamental units. The units still, quantity is still now length, mass, time and electric current. Length having unit meter symbolized by small m. Mass having unit kilogram as accepted as the standard fundamental unit. Notation kg. Time के लिए second. SEC यूज करें या कई बुक्स इसको खाली S लिखती है, that also doesn't matter. Electric current के लिए ampere, capital A. So this was our MKSS system. After the experience of electric current, that quantity was found out which was not able to be derived using meter kilogram second, and they had to enter it as a fundamental quantity. After this experience, IBWM started searching out for other fundamental quantities, and they came out with 3 more. एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट साइंस स्ट्रीम में केल्विन लिया जाता है, साइंटिफिक फील्ड में सेल्सियस वाले केल्विन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। एक तो टेम्परेचर हो गया, फिर नेक्स्ट वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या? तो ल्यूमिना वर्ड इज कमिंग फ्रॉम लाइट, ल्यूमिना मीन्स लाइट, तो लाइट की इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस, एंड इट इज मेजर्ड इन कैंडेला। नोटेशन कैपिटल सी छोटा डी, तो दैट इज यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में अगर जानना हो तो सिंपल से एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आपको। टेक अ नाइट बल्ब, टेक अ नॉर्मल रेगुलर बल्ब एंड अ हेलोजन, इन तीनों को चालू करो तो फर्क क्या दिखता है? तो इमीडिएटली बोलोगे सर हेलोजन बहुत ब्राइट होती है, नाइट लैम्प एकदम लो होता है, एंड नॉर्मल बल्ब बीच में आएगा दोनों के। दैट ब्राइटनेस, दैट डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Intensity means how much brightness it is giving, that is measured in candela power. Further एक और चीज था quantity of matter. ना क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी क्या बेसिकली? तो इसके बारे में बोलेंगे कि वी नो दैट मैटर बेसिकली एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ 4th फॉर्म प्लाज्मा आल्सो, बट नॉट, वी आर रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू गो इनटू दैट एरिया। तो हमारे लिए 3 ही फॉर्म मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इज मेजर्ड इन किलोग्राम, दैट इज मास। सॉलिड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मास इन किलोग्राम। लिक्विड को मास किलोग्राम में नहीं, लीटर में मेजर करते हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम। एंड गैस के बारे में केजी या मास, लीटर, एज पर चॉइस, एज पर सिचुएशन वी यूज केजी और लीटर। अब सॉलिड मेजर्ड इन किलोग्राम, लिक्विड मेजर्ड इन लीटर, यानी कि मास एंड वॉल्यूम आर 2 different quantities which are used for solid and liquid, measuring solid and liquid. Scientists while doing experiments, they face certain problems that when they are doing a research or some work with solid and the solid melts, converts into liquid, solid converts into liquid, लिया तो उन्होंने किलोग्राम में, अब मिल रहा है लीटर में। किलोग्राम लीटर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? Sorry, they don't have it. So kilogram equal to liter is not possible because both are different quantities. You cannot equate different quantities. So there was a dilemma for them that while performing experiment with solid, if it converts into liquid or in gas, how to maintain the unit? Because there are different quantities used, so different units used. So converting from solid to liquid, conversion from solid to liquid was not easy for them while doing calculations. So they were requiring a unified unit for all of them, a unified unit, so that conversion from solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid becomes easier for them. So they came out with a concept of 6 into 10 raised to 23 atoms or molecules, as the case may be, whether it's a molecular substance or atomic substance. 6 into 10 raised to 23 number was given the name 1 mole, and they defined mole number. अब अगर सॉलिड लिया इतने एटम्स वाला, वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम, तो 1 मोल विल नॉट चेंज।
So conversion from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid will not make a change in number of atoms. भले क्वांटिटी चेंज हुई पर नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन द सेम. इसलिए उन्होंने फिर 1 मोल यानी मोल को यूनिट ले लिया स्टैंडर्ड यूनिट फॉर डिफाइनिंग एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, अ यूनिफाइड यूनिट फॉर ऑल ऑफ देम. एंड ये हो गया हमारे लिए क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मेजर्ड इन मोल. इन्हें प्यार से मोल नंबर भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड मोल नंबर. So that is the seventh quantity entered here. After getting these 7 quantities, IBWM finalized that these are the 7 fundamental quantities, and this system now, which is nothing but extended form of MKS. It's an extended form of MKS. This system was given the name SI unit system. What does stand for SI? System International Unit System. That's how we say that. It is the internationally accepted unit system now. MKS को एक्सटेंड किया, MKS से बना, MKS के बाद 3 और ऐड किए, तो we get total 7 quantities and that forms the SI unit system. Now IBWM is relaxed कि ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज आ गई जो फंडामेंटल थी. उन्होंने इस लिस्ट को लॉक डाउन कर दिया कि now this is the SI unit system. But you know very well, scientists in everywhere in the world are working more and more, and there came out 3 more quantities. IBWM ने बोला भाई इसमें अब कुछ ऐड नहीं करना है, जो नवी क्वांटिटीज देनी हो तो उसके लिए अलग हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टेबल बनाते हैं. नो डाउट दीज आर आल्सो फंडामेंटल यूनिट्स, बट नाउ देयर विल बी नो चेंज इन एसआई यूनिट सिस्टम. सो एसआई यूनिट सिस्टम के 7 तो लॉक कर दिए, उसके अलावा 3 और निकले. एक प्लेन एंगल. प्लेन एंगल यानी क्या? एक लाइन दूसरी लाइन दे लाई इन द सेम प्लेन. ज्योमेट्री बोलता है कि 2 लाइंस फॉर्म अ यूनिक प्लेन. इस यूनिक प्लेन में इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो बनता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल. हम लोग इसको मेजर करते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री ऐसे मेजर करते हैं. तो दिस इज द प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री लेते हैं, पर डिग्री डज नॉट फॉलो डेसिमल सिस्टम. डिग्री डज नॉट फॉलो डेसिमल सिस्टम, इसलिए उसके बदले यहाँ पे यूनिट रेडियन लिया गया. रेडियन. एंड इसका नोटेशन लिया RAD. यूनिट फॉर प्लेन एंगल वाज टेकन एज रेडियन. तुम बोलोगे डिग्री और रेडियन का क्या लेना देना? तो इट इज गिवन एज 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन. 3.14 तो नंबर पहचाना है, जाना पहचाना है, पाई रेडियन. सो 180 डिग्री वाज गिवन, पाई रेडियन. नाउ द डिग्री कन्वर्टेड टू रेडियन विल फॉलो डेसिमल सिस्टम एंड कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा. ज्यादा डिग्री हम लोग इसी चैप्टर में आगे मेजरमेंट पढ़ेंगे तब लेंगे इसको. ये हो गया एक. सेकेंड कम्स आउट टू बी सॉलिड एंगल. हम बोले कि प्लेन एंगल तो सुना, ये सॉलिड एंगल की मतलब क्या? तो प्लेन एंगल इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस इन अ प्लेन. प्लेन फॉर्म्स 2 डायमेंशनल सिस्टम. सॉलिड एंगल के लिए 3 डायमेंशनल सिस्टम लेना पड़ेगा, यानी एंगल फॉर्म्ड इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. तो मतलब ये क्या चीज होती है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर निकलते नहीं है, पर समर में नॉर्मली हमारे लिए वन थिंग इज वेरी वन फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग हमेशा समर शुरू होते हैं उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं. यू विल यूनानिमसली से दैट इट्स मैंगो. फाइन. मैंगो के बाद दूसरा प्रायोरिटी किसका आता है? ऑब्वियसली यस, वाटरमेलन. अब वाटरमेलन खरीदने जाते हैं माँ के साथ में, तो क्या करते हैं? वाटरमेलन वाला वाटरमेलन निकाल के देगा, माँ बोलेगी नहीं मुझे तो चखना है. तो व्हाट टू डू? ही यूजेस अ वेरी लॉन्ग नाइफ. एक कट यूं मारा, दूसरा कट यूं मारा, एक कट यूं मारा, दूसरा कट यूं मारा, एंड ये जो स्क्वायर पीस क्रिएट होता है उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं. तो देखो तो कैसा दिखता है? पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर. होप यू रिमेंबर दिस. नहीं देखा है कभी तो अगली बार माँ जब वाटरमेलन लेने जाए तो साथ में चलो एंड देखो क्या करते हैं. टेकिंग आउट दिस स्क्वायर पीस विल गिव अ पॉइंटेड थिंग पॉइंटेड एट द एज, एट द सेंटर सॉरी. तो यूज स्क्वायर पीस एंड पॉइंटेड पार्ट. खाली हाथ घुमा उसके ऊपर तो लगेगा ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो गया. एंगल इन 3 डायमेंशंस. ओके, सो दिस इज एंगल इन 3 डायमेंशन कॉल्ड सॉलिड एंगल. क्या स्क्वायर से बनता है? नहीं. इफ यू टेक अ सर्कल, ये सॉलिड एंगल हो गया. अब ये तो जाना पहचान है ना, वाटरमेलन खरीदने नहीं गए पर ये तो जाना है ना. आइसक्रीम खाते किंग कोन, तो व्हाट इज दैट किंग कोन? सॉलिड एंगल. अगली बार से जब आइसक्रीम खाओगे उसको किंग कोन लोगे तो स्टार्ट डूइंग इट. और ये तो वही है सॉलिड एंगल फिजिक्स वाला. इट इज मेजर्ड इन स्टी रेडियन एंड नोटेशन SR. दैट इज द सेकंड फंडामेंटल यूनिट. सॉलिड एंगल के बाद प्लेन एंगल.
फिर तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट इज रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी यानी क्या, नाम सुना हुआ है 9th and 10th में, एक्टिविटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस। वी नो दैट हैवी एलिमेंट्स they are not stable, so in order to gain stability they usually emit certain radiations in their natural form, जिसको बोलते हैं हम लोग radioactivity phenomenon। radiations emit करते हैं। this number of radiations emitted in 1 second is measured in becquerel, notation BQ, that is the fundamental unit of radioactivity, becquerel। कितने रेडिएशन एमिट, कौन से रेडिएशन होते हैं नॉर्मली, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो ये रेडिएशन जो एमिट होते हैं कितने एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, उसको बैकरल में मेजर करते हैं, BQ इज द यूनिट। सो दीज आर द 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स व्हिच गॉट एडेड टू SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में 7 क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री की 3 कुल मिला के ये 10 क्वांटिटीज 10 यूनिट्स वाला SI सिस्टम हो गया। हाँ, इसको हम लोग SI सिस्टम का पार्ट नहीं गिनते हैं, इट्स अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स अलोंग विद SI सिस्टम। Okay, so these are the units system which is now accepted worldwide, SI unit system. So after understanding the SI unit system and supplementary units, let's see the norms of using this unit system. तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है while using this system। फाइनलाइज किया SI unit system को along with the supplementary units while using, these are the units of fundamental quantities, derived quantities can be obtained using this। तो ये जब यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास नोट्स है, उसमें चैप्टर पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट गाइडलाइंस फॉर यूजिंग SI यूनिट सिस्टम, या फिर विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग SI यूनिट सिस्टम। तो पॉइंट्स को एक बार फटाफट देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी बट देन ऑल्सो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है यूनिट ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द सिंबल गिवन इन द टेबल। टेबल में जो सिंबल दिया उसी के मुताबिक इसे यूज करना है। फिर दूसरा दिया हुआ है देयर शुड बी नो फुल स्टॉप इन बिटवीन और एट द एंड। जैसे किलोग्राम है kg, तो इसको लिख करके ऐसा नहीं लिखने का K.G. माइंड वेल, इट इज नॉट एब्रीविएशन, इट इज यूनिट। तो ना बीच में ना एंड में कोई डॉट फुल स्टॉप सिंबल नहीं आएगा। हाँ, यू कैन यूज फुल स्टॉप वेल सेपरेटिंग 2 यूनिट्स, न्यूटन इनटू सेकंड। 2 यूनिट को सेपरेट कर रहे हो तो बराबर है, एज अ सेपरेटेड इज फाइन, बट इन द यूनिट सिंगल सेम यूनिट यू कैन नॉट यूज फुल स्टॉप इन बिटवीन और एट द एंड। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यूनिट्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, वेदर यू यूज 1 kg और यू यूज 1000 kg, ये kg ही रहेगा, किलोग्राम्स नहीं बनेगा। बी वेरी केयरफुल, वी नेवर यूज प्लूरल सिस्टम। फिजिक्स में क्लियरली बोला हुआ है कि यूनिट्स को कभी भी प्लूरल में सेकंड्स नहीं लिख सकते, खाली सेकंड ही लिखने का। ओके। थर्डली, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज अ सिंगल रेशियो। नाउ सिंगल रेशियो के फॉर्म में लिखना है, जैसे सपोज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, फाइन, एक रेशियो बराबर है। बट व्हेन वी राइट एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दो रेशियो हो गए, नॉट अलाउड। तो फिर क्या करने का इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे, या फिर बहुत तो मीटर इंटू सेकंड रेज टू -2, राइट इट दिस वे। You can write it as a single ratio only, या फिर in one line itself. But you cannot have more than one ratios in the same unit. Okay. And फिर last but not the least, ज्यादातर यूनिट सिस्टम के यूनिट्स ज्यादातर किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। Okay. So while using the symbol, if you are using the name of a scientist and if you are using the symbol, then capital letter is allowed. जैसे एम्पियर is the name of a scientist, तो एम्पियर यूज किया है तो खाली सिंबल वाइज लिख रहे हो तो ए लिखने का। अगर पूरा नाम लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है, तो यू कैन नॉट यूज कैपिटल। सिमिलरली पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अगर आप इसको पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल p लिखना है, पर अगर सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल P एंड A ऐसे लिख सकते हैं। सो व्हाइल यूजिंग द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एज अ यूनिट, यूजिंग द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एज अ यूनिट, इफ यू आर राइटिंग द एंटायर नेम, then strictly small letters only, and if you are using the symbol, then fine, capital is allowed, then capital is allowed। ये guidelines को ध्यान में रख के you have to use the unit systems। So that completes the discussion of unit systems।